Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. Here we can discuss about the thermal properties of matter, that is the very last chapter involved in 9th standard physics. So here we can discuss textbook exercises. Number first is multiple choice question that is involved in it. That is a very first question. Here is heat is the form of, definitely it is the form of energy, not a pressure, not a weight. So heat is the form of energy. Number second is heat capacity. Heat capacity is the product of mass and definitely specific heat of material. Number D is your answer. And the amount of heat needed to convert a substance from solid to gas is called definitely heat of vaporization. And thermal energy transfer required per unit mass to increase the temperature by 1 degree Celsius to 1 Kelvin is called specific heat of capacity. And the fixed temperature at which a pure liquid boils is called its boiling point. Here the sixth question is, okay, here the sixth part is the melting point of ice. Wait a minute. The melting point of ice at normal atmospheric pressure is called 0 degrees Celsius. And seventh is the temperature, the thermal energy transfer required to change a solid into liquid without changing its temperature is called its latent heat of fusion. And the thermal energy transfer required to change a liquid into gas without changing its temperature is called its latent heat of vaporization. Evaporation can occur at all temperatures, and rate of evaporation of a liquid can be increased by increasing its boiling point. Number 11 is the linear thermal expansion of a solid depend upon all of these by it depend upon increasing in temperature, properties of material, its original length, and the correct answer is all of these. Now here is the section B part, that is structured questions. Basically that is the structured questions. Okay, I will pick that color. Okay, here is question number 1. Define heat and write its SI unit. So सिंपली हम इसको जो है डिफाइन कर देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, एंड ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट मे बी. ओके, heat is the form of energy that transfers from a hot body to a cold body as a result of the difference in temperature between them, and the SI unit is joule. Here is joule, and its SI unit is also a calorie. A calorie is also a SI unit. Here is a joule and a calorie. Second question, which is maybe important from exam point of view, that is the conversion. That is the conversion in temperature measuring scale, Kelvin, Fahrenheit, Celsius. So here is the question to convert 30 degrees Celsius into Kelvin and Fahrenheit. Firstly, we will make a data. Here, make sure कि आपके पास जो डिग्री सेल्सियस है वो आप मेंशन करें. 30 डिग्री सेल्सियस हमने मेंशन करा इसमें.
केल्विन में चेंज करना है इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, तो हम केल्विन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। वर्किंग फार्मूला हमारे पास क्या है इसका, टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। हियर इज द formula to convert Fahrenheit into डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये आपके पास का फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर। दैट इज़ डेल्टा एफ डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 1.8 जो है मल्टीप्लाई होगा जो आपके पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है, हमारे पास है वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस, वो कन्वर्ट करना है तो हम 30 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे इस अंदर और ऐड करेंगे 32 उसके अंदर। तो 1.8 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आंसर आएगा, और जब हम इसको 32 से प्लस कर देंगे तो हमारे पास का 84 आंसर आएगा। हमारे पास इतना मिस्टेक हुई हुई है क्योंकि मैं ये थ्रू वेबसाइट आपको जो है ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, सो वो मैं मिस्टेक आपको साथ साथ बता रही हूँ कि ये 32 इसमें हम ऐड करेंगे, हमारे पास 84 डिग्री सेल्सियस हम इसको किस में कर रहे हैं, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं, तो हम इधर डिग्री सेल्सियस का भी यानी सी भी आएगा इसके साथ। 84 डिग्री सेल्सियस आंसर है इसका, ठीक है। टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, डिग्री सेल्सियस को हम अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए भी फॉर्मूला है कि के इज़ इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना है दिया हुआ है, हमारे पास डाटा में देख लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, तो हम 30 डिग्री सेल्सियस को 273 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 303 केल्विन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो केल्विन कन्वर्ट, हम केल्विन के फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। अच्छा जी, तो हम उसका नेक्स्ट फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा। ओके, एक्सप्लेन थ्री डिफरेंट स्केल्स। अच्छा, 3 डिफरेंट स्केल्स हमें एक्सप्लेन करने हैं अलॉन्ग विद योर मेन यूजर्स। ओके, सो सिंपली ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन यू विल कॉपी ऑल द आंसर्स, और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके इसको यूज़ कर सकते हैं अपना स्टडीज़ के लिए। सो thermometers have different scales to measure temperature. There are 3 scales of temperature. Degree Celsius scale, that is mostly used in environmental studies. environmental studies में हम इसको यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल को हम क्लिनिकल मेजरमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, और केल्विन स्केल को हम इंडस्ट्रियल मेजरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो इन दिस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट होगा, हमें इस डायग्राम में अच्छी तरीके से बताया हुआ है, सो मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो इस स्केल में हमारा जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा, सेल्सियस की स्केल की बात कर रही हूँ मैं, जो कि सेंटीग्रेड स्केल है, इसमें हमारा जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास लोअर पॉइंट होगा हियर, एंड विच इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ हियर यू कैन सी। हम सेल्सियस स्केल की बात करें ना, and which is a boiling point of water. The interval between these 2 points is divided into 100 equal divisions or units. एक division is called a degree Celsius. जो भी इसके डिवीजन होंगे, जो 2 पॉइंट्स डिवीजन के इसमें ऐड किए गए हैं, जो कि जो इंटरवल होगा 2 पॉइंट्स का, वो 100 इक्वल डिवीजन्स के दरमियान होगा, एंड दिस डिवीजन जो कि ईच डिवीजन होगी वो आपकी डिग्री सेल्सियस कहला रही होगी। सेकेंड स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल, एंड दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन एज द लोअर फिक्स पॉइंट विच इज मार्क्ड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हियर यू कैन सी 32, ये लोअर, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कहलाता है। ये वाटर जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है ना, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज द अपर फिक्स्ड पॉइंट विच इज मार्क्ड एज 212 फ़ारेनहाइट। Here is the upper, that is upper fixed point.
212 Fahrenheit. Okay, there are 180 equal divisions or units between these. Okay, जो डिवीजन जोन में होंगे हर फ़ारेनहाइट के स्केल में जो इंटरवल आ रहा होगा 180 डिवीजन्स का होगा, एंड देन ये इसको डिग्री फ़ारेनहाइट करेंगे. फिर थर्ड स्केल इज़ Kelvin scale. Here you can see the whole Kelvin measurement. Okay, at this scale the melting point of ice taken as 273 Kelvin. 273 Kelvin as a lower fixed point, and the upper fixed point is 373. Okay, the upper fixed point is 373 Kelvin, and there are 100 equal units between these points. That is the interval between 2 points, and the zero of this scale mark 0k starts from minus 273 degrees Celsius. Here is all about the scales that is used in measuring temperature, and we will discuss about their main uses. Next is differentiate between heat and temperature. Okay, we can differentiate it between heat and temperature. Heat is energy that flows from a high temperature object to a low temperature object, and temperature is degree of hotness and coldness. It's just a degree of measuring hotness and coldness. Heat is a form of energy. Okay, heat of a body is the sum of all kinetic and potential energies of molecules constituting of body, and temperature of a body is the average kinetic energy of its molecule, and heat can be measured by calorimeter. Okay, heat can be measured by calorimeter, and whereas temperature is measured by thermometer. We can all discuss the three main types of it, and the SI unit of heat is joule, which is also, and calorie is also a SI unit of heat, and SI unit of temperature is Kelvin, but it is also measured in degree Fahrenheit and Celsius degrees and Celsius scales. Okay, next is the conversion of degree Fahrenheit into degree Celsius and Kelvin scale. पहले वाले क्वेश्चन में हमने we already discussed the conversion through working formula. Okay, let's go through it. Here is the data degree Fahrenheit from which it is converted, and okay डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, एंड देन हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है. सो डिग्री फ़ारेनहाइट को हम सबसे पहले सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसका वर्किंग फार्मूला आपको डिस्कस हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया था. ओके, हियर डिग्री सेल्सियस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं. सो हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, 1.8 डिग्री गिवन है. ये हमारे पास फार्मूला है +32. तो फ़ारेनहाइट की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे. हियर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे. हियर हमने इसकी वैल्यू लिख दी है. ओके, आप इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसको डायरेक्ट करा हुआ है. मैं इसको आपको डायरेक्ट करना बता रही थी, लेकिन इट्स ओके. डिग्री फ़ारेनहाइट को आपने क्या करना है, हमें डिग्री सेल्सियस चाहिए. तो 1.8 डिग्री सेल्सियस को हम जो है बाहर निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से बाहर निकाल लेंगे. जो 1.8 डिग्री सेल्सियस बाहर आ गया इज इक्वल्स टू जो था अब पॉजिटिव में था वहाँ जाके नेगेटिव की वैल्यू में हो जाएगा, एंड देन डेट इज़ 32 इज इक्वल्स टू 32. ये ऐसे ही रहेगा. डिग्री सेल्सियस आपके पास ऐसे ही रहेगा, एंड देन 1.8 जो था वो आपके पास डिवीजन में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला गया है. 212 minus 32 is 180, and then it is divided by 1.8 and 100 degree Celsius your answer. Simply to convert degree Celsius into Kelvin, K is equals to degree centigrade, degree Celsius, whatever you want to say, plus 273, and Kelvin is equals to 100 because
सेंटीग्रेड का जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस आया, तो हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास डाटा में तो गिवन ही नहीं है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर। सो हम क्या करेंगे, पहले हमने डिग्री सेल्सियस का जो था इसको सॉल्यूशन करा, इसको निकाला है, एंड देन हम फिर वर्किंग फॉर्मूले में हमने इसको ऐड करा, सब्सटीट्यूट करी वैल्यूज़ की, एंड देन हमने आंसर ले आए हैं, दैट इज़ 373 केल्विन हियर। Okay, the next question is specific heat capacity. Explain specific heat capacity. Here we'll only write a definition, that is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance through a 1 degree Celsius is called the specific heat capacity of that substance. And here you can also write the expression and the equation of a specific heat capacity, that is a small c is as under capital C is equals to small c upon small m, that is equal to 1 upon m. 1 here is the 1 is of 1 kg, that is equals to q over delta t, and here c is equals to delta q and m delta t. It simply multiply हुआ है, where c is constant, so it depends upon the nature of a material of a body, and this constant is also called specific heat capacity or specific heat. And हमें ये भी बताना चाहिए कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, यहाँ से MCQs में या फिर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो ऐसा यूनिट यू मस्ट नो कि जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, यू कैन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट। एंड द गिवन टेबल शोज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप ये अपने बुक से ज़रूर रीड कर लीजिएगा, बुक में मेंशन होंगे, जिस टेबल एक मेंशन है बुक में, जिसके थ्रू आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की, डिफरेंट मटेरियल की है, वो आप इसको बुक से, जो आपकी सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक है, उसमें जो है ये मौजूद है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। इट्स नॉट अ वेरी, कैलोरीमीटर के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी आई विल स्किप इट। ओके, नेक्स्ट इज़ okay. Okay, here I can find another question, क्योंकि हम ये बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, जो आप बुक के सबसे चैप्टर जब फिनिश होता है तो उसका सबसे लास्ट में जो एक्सरसाइजेस दी हुए होते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg वाटर विच इज़ इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, kg में गिवन है, सो एब्सोल्युटली ये हमारे पास मास ही है, एंड मास ही मतलब मास गिवन है विच इज़ इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस। तो T1 हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि इनिशियली की बात हो रही है, यानी फर्स्ट टेम्परेचर की बात हो रही है, और हमें इसको बॉईल करना है, वी हैव टू बॉईल इट, और बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है एक इक्वेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने अभी सॉल्व कराया था क्वेश्चन, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले डाटा बना लेते हैं। m इज़ इक्वल्स टू 3 kg. Okay, m is equals to 3 kg. Here is the data. m is equals to 3 kg. T1 is equals to 10 because जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर को हम T1 कहते हैं, और जो फाइनल टेम्परेचर होता है डैट इज़
हम इसको T2 कहते हैं फाइनल टेम्परेचर को। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हमें बॉयल करने के लिए जो 3 kg वाटर है, जो मटेरियल एंड देन हम उसका इनिशियल टेम्परेचर गिवन है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, हमें कितना मतलब हीट रिक्वायर्ड है, तो हमें क्यों मालूम करना है। बॉयल करना है तो हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा T2। तो इक्वेशन के मुताबिक जो डेल्टा टी हमें रखना होगा इक्वेशन के मुताबिक, तो डेल्टा टी इज़ बेसिकली T2 minus T1. Here we can go. Okay, T2 minus T1 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास 90 डिग्री जो है डेल्टा टी निकल के आ जाएगा, डेट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सी हमारे पास गिवन है 4200 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास गिवन होगा। ओके, इट्स में भी नहीं, यहाँ पास गिवन नहीं होगा, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है ये। ओके, हमें फाइंड करना है Q, यानी हीट कितनी रिक्वायर्ड हुई है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें इसको वर्किंग फार्मूला चाहिए होगा, डेट इज़ C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। डेल्टा Q को हम निकाल लेंगे इधर से और C मल्टीप्लाई हो जाएगा M डेल्टा T से जाके, एंड यू कैन राइट द वैल्यूज एंड हम पास आंसर जो है इस फॉर्मूले के थ्रू आ जाएगा। ओके, ये मैं आपको स्क्रीन शो कर रही हूँ। Explain the effects of large specific heat capacity of water with examples from our daily life। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट मे बी कि आज एग्ज़ाम में आप 1-2 इफ़ेक्ट्स आप बता दें, इट्स इनफ। ओके, एक क्वेश्चन है कि देखिए न्यूमेरिकल्स हमें सारे ही देखने पड़ता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से घूम घुमा के हमें वही आ जाता है। So 2 kg of copper required 2050 joule of heat to raise its temperature through 10 degree Celsius. Calculate the heat capacity of the sample। तो हमारे पास मास गिवन है 2 kg और जूल में हमारे पास गिवन है, तो ये हीट ही है 2050 जूल ऑफ हीट हमारे पास गिवन भी है ना, ये हीट बता रहे हैं, यानी Q है ये हमारे पास। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है ना फाइनल टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास फाइनली टेम्परेचर मतलब समझा हुआ चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। सो हमारे पास मास 2 kg है, डेल्टा टी हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, स्मॉल सी हमारे पास 385, ये आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में, एंड देन डेल्टा क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्किंग फार्मूला तो वही है, डेल्टा क्यू हमने निकाल लिया, C मल्टीप्लाई हो गया M डेल्टा T से जाके, तो डेल्टा क्यू की वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो बिल्कुल पहले वाला ही यही वाला क्वेश्चन इसी तरीके से जो है ये वाला भी सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हीट ऑफ फ्यूजन, आप इसको सिंपली जो है आप इसको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद करेगा। हीट ऑफ फ्यूजन की, द हीट एब्जॉर्ब बाय अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर का हीट ऑफ फ्यूजन। एंड हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन का डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड go through it। Okay, next is ये आपका एक रीज़न के थ्रू आ सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई evaporation causes cooling। Okay, when evaporation occurs, the molecules of water with greater kinetic energy escape from its surface, and so the molecules of water with lower kinetic energy are left behind. This results in a
A decrease in the temperature of water and hence evaporation causes cooling, and the answer is completed. Differentiate between evaporation and boiling. Here is the difference between evaporation and boiling. You can go through it. That is, it takes place without the supply of external heat source. It also it's only take place with the supply of external heat surface. It causes cooling. It's relatively slow. Boiling is also a slow procedure and it does not cause cooling. No formation of bubbles are formed. Okay. The next question is, write any 4 factors that influence the surface evaporation: temperature, wind speed, nature of liquid, solid concentration, humidity also affect the surface evaporation. Okay, write down the freezing and boiling point of following: acetic acid, benzene, chloroform, water. ओके, ये आपके पास गिवन है, ये एज MCQ के तौर पे या फिर एक चार्ट फिलिंग क्वेश्चन भी आ सकता है. सो यू कैन गो थ्रू इट. ये आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी और ये भी एक एज ए रीज़न के तौर पे आ सकता है. वाई सॉलिड इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग. ओके, ये क्वेश्चन 13 है हमारे पास. एन आयरन ब्लॉक, it is a very important question from my point of view. An iron block of volume 3 meter cube is heated so that its temperature changes from 25 degrees Celsius to 100 degrees Celsius if the coefficient of linear expansion of iron is 11 exponent minus 6 degrees Celsius. In verse 1, what will be the new volume of the iron block after heating? Here the volume is given, that is 3 meter cube. Temperature is given, that is 25 degrees Celsius. And change in temperature, here is a changes from 25 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. तो हमारे जो T है वो हम इसको ऐसे रखेंगे, T1 T2 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है डेल्टा T, चलो हम इसको T1 T2 भी कर सकते हैं. यहाँ पास T1 है 25 डिग्री सेल्सियस, इधर हमारे पास T2 है 100 डिग्री सेल्सियस. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसे हम अल्फ़ा कहते हैं, क्योंकि पर इक्वेशन में अल्फ़ा है ना, यह बस वैल्यू में गिवन होगा हमेशा. व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द आयरन ब्लॉक आफ्टर हीटिंग. हमें डेल्टा V फाइंड आउट करना. हमने सारी वैल्यूज़ को इस डाटा में पुट किया, ठीक है. Okay, we know that B is equals to 3 alpha, therefore B is equals to 3 alpha. 3 alpha, अल्फ़ा की जगह जो आप अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अल्फ़ा इज़ बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है 11 एक्सपोनेंट माइनस 6, वो आप इधर पुट करेंगे, आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा का, वो आपके पास ये रहा. आप इसमें वर्किंग फार्मूला ऐड करेंगे. वर्किंग फार्मूला है हमारे पास डेल्टा V, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, इज इक्वल टू बीटा V डेल्टा T. बीटा हमें फाइंड आउट सबसे पहले करना होगा, तो हमने बीटा को फाइंड आउट किया. किस तरीके से किया, हमने बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा किया. बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा की जगह उसकी अल्फ़ा की वैल्यू रखी जो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है आयरन का, हमने लिख दिया. और ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा. हमने वर्किंग फार्मूला लगाया, डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा V इज इक्वल्स टू बीटा V डेल्टा T. डेल्टा V इज इक्वल्स टू बीटा की जगह हमने बीटा की वैल्यू रख दिया, जो कि हमने इस फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट करी थी. वॉल्यूम की जगह आपने वॉल्यूम रख दिया. Here is the value of volume, that is 3 meter cube.
एंड डेल्टा टी दैट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। आपने ये फाइंड आउट किया था 75 डिग्री सेल्सियस, आपकी 75 डिग्री सेल्सियस तक लगती है। आप जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हम जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, ये हमारा आंसर होगा। तो हमने डेल्टा वी भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चंस क्या है, क्या क्या आ सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट लगे हमें। डेरिवेशन है, हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन की, लीनियर एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? द एक्सपेंशन इन लिक्विड ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। ओके, हम इसकी डेरिवेशन भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। ओके, it is one-dimensional expansion as it occurs only along the length of object. Suppose a rod of some material with original length L and initial temperature T, and it is heated through a certain temperature that is T dash. ओके, इनिशियल टेम्परेचर को आप T1 भी कह सकते हैं, और जो सर्टेन टेम्परेचर जहाँ तक हीट हो रहा है आप उसको T2 भी कह सकते हैं। T1 T2, आप इधर जो मेंशन किया हुआ है खाली T है और T डैश है, तो आप इसको T1 T2 भी कर सकते हैं। Then its length increases and become L डैश। ओके, लेंथ इंक्रीज हुआ, यानी जो इनिशियल लेंथ थी वो L थी, जब इंक्रीज हुई लेंथ तो L डैश हो गई। और therefore चेंज इन टेम्परेचर को हम कहते हैं डेल्टा T, जो कि T2 माइनस T1 होता है, इधर T डैश माइनस T है। और चेंज इन लेंथ को हम कहते हैं डेल्टा L, जो कि L2 माइनस L1 होता है, और इधर L डैश माइनस L है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली proved that change in length is directly proportional to the original length and change in temperature. Therefore delta L is equals to constant multiplied by L delta T, and this constant is denoted by alpha, and it is called coefficient of linear expansion, and it depends upon the nature of material. Therefore equation 3 can be written as delta L is equals to alpha, जो कि हमेशा वैल्यू गिवन होगी हमारे पास क्वेश्चन में, L डेल्टा T। ये यू कैन सी जो कि एक रॉड थी, वन डायमेंशनल एक्सपेंशन हुई इसके अंदर, और इसकी जो लेंथ थी, जो इनिशियल लेंथ थी वो L थी, और जब एक्सपेंशन हुई, हीट प्रोवाइड की गई, टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, तो इसमें ये जो है, ये जो एक्स्ट्रा है वो एक्सपेंशन, यानी जो मटेरियल था वो एक्सपेंड हुआ और उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट, इन्हांसमेंट शो की गई। सो यहीं पे हमारा जो ये लेक्चर था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये जो सीरीज है हमारी पसंद आई हो और आपको ये थोड़ा बहुत बेनिफिट भी पहुंचा पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।